Welcome students, the second video of exercise number 10.2, and in this video we will be discussing about the other forms. As I had already told you some forms of a straight line, in this video also we will discuss some more points, some more forms of the lines. Number one is slope intercept form. Okay, slope intercept form. Now what is this slope intercept form? Here this intercept is called y-intercept. This is what? This is y-intercept. Means the length of, means the distance of a point where the line meet y-axis from the origin. ऑरिजिन से जो दूरी होती है ये y इंटरसेप्ट कहलाता है और इसे c से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वेशन का फॉर्म है y is equals to mx plus c. What is m? M is the slope. Slope is m, or you can write it as tan theta also. So this is called slope intercept form. Intercept is always the y intercept. If x intercept is given to you, you will not consider it. Y intercept will be taken. Y intercept, C is Y intercept. Okay. Second form is intercept form. What is intercept form? The intercept made by the line on the axis. This is x-axis and this is y-axis, and the intercept made by the line on x-axis, say this is A and this is B. x-axis पर A यूनिट का इंटरसेप्ट बनाया है और y-axis पर B यूनिट का इंटरसेप्ट बनाया है, तो इक्वेशन हो गई x upon A plus y upon B is equals to 1. This is called intercept form. Third one is called the normal form. Normal form or perpendicular form, and यहां पर क्या पता होना चाहिए? यहां पर हमें x एक्सिस और y एक्सिस को जो लाइन काट रही है उसकी ओरिजिन से दूरी पता होना चाहिए, जिसको अपन यहां पर P मान रहे हैं, और उस परपेंडिकुलर का जो आपने लाइन के ऊपर डाला है उसके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया है एक्स एक्सिस ने, द एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन with this line, it is phi. So the form is x cos phi plus y sin phi is equals to P. X cos phi plus y sin phi is equals to P. So this is one of the form. Then one more form which is not given in our NCERT book is called the distance form. Distance form or symmetric form. If we have a line, if we have a line which intersects x-axis and making an angle theta with x-axis, and there is a point, say x1 y1, which is at a distance of a variable point, means the distance between the variable point and the given point is r. The distance between the line segment, length of the line segment AB is r. Then the form is given by x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y1 upon sin theta is equals to r. So this r will be given by
If this is theta, then this will be also theta. The value of r, this is x1, this is y1, this is y, this is x, this is x1. So we can have these lengths, then we can derive this formula also. You can see or consult the book. But the form is the symmetric form, the distance form of the line. Here the distance between A and B is given as r, and the angle theta is the angle made by the line with x-axis. It is also known as the angle of inclination. So these are the different forms which has been told in this exercise, or with the help of these different forms we will be solving the exercise. Now let's see the questions from the exercise. Students, you must, or you had already studied about the forms like 1-point form or slope point form. Y minus y1 is equals to m into x minus x1. Another form, y minus y1 is equals to y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. And then the 2-point फॉर्म के बाद में आपने पढ़ा है y is equal to mx plus c, x upon a plus y upon b is equals to 1, x cos phi plus y sin phi is equals to p, and the last the symmetric form x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y1 upon sin theta is equals to r. So these are the different forms which we had studied in the last exercise. We had discussed number 1, equation of x-axis, y is equals to 0, equation of y-axis, x is equals to 0, equation of line parallel to x-axis, y is equals to plus minus a, equation of line parallel to y-axis, x is equals to plus minus b, slope point form, y minus y1 is equals to m into x minus x1, 2-point form, y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, and now 4 more forms here. So total 6 plus 4, 10 forms we are having of different forms of lines. So let's start with question number 8, which we had left yesterday. The perpendicular distance from origin is 5. The perpendicular distance from origin is 5 units. This is question number 8 we had left yesterday, because it was based on the form which we had not discussed, and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 degree. So here the phi is given 30 degree. The length of perpendicular is given 5 units and its angle with the positive of x-axis. अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं इसका तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं. इस परपेंडिकुलर का जो एंगल हमको दिया है विद x-axis, ये x-axis है. इसके साथ जो एंगल दिया है ये 30 डिग्री दिया हुआ है. ये 5 यूनिट्स हमें कहा गया है. तो हमारे पास फॉर्म जो है वो ये वाला फॉर्म है x cos phi plus y sin phi, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू p का मतलब 5, x into root 3 by 2 plus y into 1 by 2 is equals to 5, or root 3x plus y is equals to 10. So this is the form, this is the equation of the line using the perpendicular form, the normal form. Next, let's move on to question number 11. A line perpendicular to the line segment joining the point. A line is perpendicular, our line is perpendicular to the line segment joining the points. एक लाइन है जो कि 1,0 और 2,3 को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट से होकर गुजरती है और उसके परपेंडिकुलर है. A line
perpendicular to the line segment joining a line L is perpendicular to the line segment joining 1, 0 and 2, 3. Divide it in the ratio 1:n. 1:n. This is A, this is B. So you know that there is a formula called section formula, with the help of which you can have the coordinate of point C. Coordinate of C, अगर आप इसको m लेते हैं, ये n तो है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं एक बार, mx1 प्लस nx2 mx2 प्लस, यहां अगर m ले रहे हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ये हो जाएगा 2m, सॉरी m की वैल्यू 1 है ना, तो क्या हो जाएगा 2x2 इंटू 1 प्लस n इंटू 1 अपॉन m प्लस n, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं 2 और n ही लिख लेता हूं, टाइम वेस्ट होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, that is 3 upon n plus 1. So these are the coordinates of point C. Now the slope of AB will be, you know, y2 minus y1 upon x2 minus x1, 3 minus 0 upon 2 minus 1, that is 3, and as we know that AB is perpendicular to L, therefore slope of AB into slope of L is equal to minus 1. Let us suppose that the slope of L is, अब यहां पर तो m इतने सारे हो गए, इसलिए स्लोप ऑफ L को अपन m मान लेते हैं। तो AB का स्लोप कितना आया, 3 इंटू m इज इक्वल्स टू -1, तो हमारी लाइन का स्लोप जो है वो -1/3 आ गया। तो हमारी लाइन का स्लोप हमको मालूम है, -1/3 आ गया। हमारी लाइन C पॉइंट से गुजर रही है, सो रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू C with slope -1/3। कहां से गुजर रही है, C से गुजर रही है हमारी लाइन। L लाइन कहां से गुजर रही है, इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट C and its slope is -1/3, so y minus y1 is equals to m into x minus x1, y into n plus 1 minus 3 into ये वाला 3, या इसको भी -3 कर लो, काय को करो, ठीक है। एलसीएम समझ में आ गया ना, ये y को n plus 1 से इंटू करा -3, और ये जो अपॉन n plus 1 है वो नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहां कट जाएगा वो। अब माइनस x इंटू n plus 1 माइनस 2 plus n अपॉन n plus 1, तो हो जाएगा 3y इंटू n plus 1 माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस x इंटू n plus 1 प्लस 2 plus n, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू n plus 1 प्लस 3y इंटू n plus 1 इज इक्वल्स टू 11 plus n. So this will be the equation. तो कंसेप्ट क्या कहा गया था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक लाइन L है जो कि एक लाइन सेगमेंट जो कि इस पॉइंट से गुजर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर है, और वो लाइन हमारी लाइन सेगमेंट को 1:n के रेशियो में काटती है। ध्यान रखिएगा, लाइन ही लाइन सेगमेंट को 1:n के रेशियो में काट सकती है या किसी रेशियो में काट सकती है। लाइन सेगमेंट लाइन को कभी नहीं रेशियो में काट सकता, क्योंकि रेशियो में वो चीज कटेगी जिसका लेंथ फिक्स्ड होगी।
लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती, लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है, इसीलिए लाइन सेगमेंट ही रेशियो में डिवाइड होगा। तो कंसेप्ट के हिसाब से पहले सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके 1 × 2 + n × 1, 1 × 2 + n × 1 अपॉन n + 1, फिर 1 × 3 × n × 0 अपॉन n + 1। सी के कोऑर्डिनेट आ गए, स्लोप निकालना है, ए बी का स्लोप हमको मालूम है, हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ए बी के परपेंडिकुलर हमारी लाइन है तो उसका स्लोप उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होगा। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल, 3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/3। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहें, जैसे एबी का स्लोप निकाल लिया, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ एल डायरेक्टली आप लिख सकते हैं -1/3। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अगर समझ गए हो तो। उसके बाद अपन ने 1 पॉइंट फॉर्म लगा दिया, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया। जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कोएफिशिएंट्स जो हो x और y के, उनको ओपन मत करना, वो वैसे ही लिखे रहेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2, 3। सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a + y/b = 1। वो कह रहा है इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है, लाइन जो है वो बराबर इंटरसेप्ट काट रही है, मतलब अगर ये a है तो ये भी a है। लाइन इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट एंड पासिंग थ्रू 2, 3। और कहां से गुजर रही है, 2, 3 से गुजर रही है लाइन हमारी, है ना। तो इंटरसेप्ट कैसे बना रही है, वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, और कहां से गुजर रही है, 2, 3 से गुजर रही है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/a + y/a = 1। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो x + y = a। नाउ पासिंग थ्रू, रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू 2, 3। ये है हमारी रिक्वायर्ड लाइन, ध्यान दीजिएगा है, रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू 2, 3। तो सेटिस्फाई द इक्वेशन, 2 + 3 = a, तो a = 5। सो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या हो गई, x + y = 5। क्योंकि लाइन जिस पॉइंट से गुजरती है उसे सेटिस्फाई जरूर करती है, क्योंकि लाइन का वो सॉल्यूशन होता है। अगर लाइन 2, 3 से गुजर रही है तो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई जरूर करेगी, क्योंकि 2, 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। तो इसीलिए पुट करा x और y की जगह पर 2 और 3, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमने इसमें रख दी, तब जाकर हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिलेगी। क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा ax + by = c के फॉर्म में होना चाहिए, ax + by = c के फॉर्म में होना चाहिए। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रेट लाइन की इससे अच्छी एक्सरसाइज आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बहुत अच्छे सवाल प्रैक्टिस करने के लिए आपको इन सवालों को अच्छे से करना चाहिए। और अगर इन पे कमांड हो गया आपका इन सवालों पे, तो मान के चलिए कि आपको स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से आ गई। सिर्फ आपको फोकस करना है गिवन सिचुएशन पर और डायग्राम पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट whose sum is 9। फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स जिनका सम क्या है, whose sum is 9, ओके, एंड पासिंग थ्रू 2, 2। हमारी लाइन कहां से, ये हमारी लाइन है ना, हमारी लाइन कहां से गुजर रही है, हमारी लाइन 2, 2 से गुजर रही है, और जो इंटरसेप्ट बना रही है वो x एक्सिस और y एक्सिस पर, उसका सम 9 है। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, x/a + y/b = 1। x/a + y/, क्या हम b की जगह पर 9 - a लिख सकते हैं, क्या b की जगह पर 9 - a लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, और पासिंग थ्रू 2, 2, पासिंग थ्रू 2, 2, तो क्या लिखेंगे, 2/a + 2/9 - a = 1। जब ऐसा करेंगे तभी तो हमको a की वैल्यू मिलेगी, और जब तक हमें a की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम अपनी इक्वेशन को नहीं लिख सकते। x 2, 2 अगर हम रखते हैं 9 - a, और
इस प्रकार से 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर, ये चला जाएगा, ये होगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 3 जा 18 है ना, 6 और 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर a 6 और 3 हो गया तो b क्या हो जाएगा, b क्या है 9 माइनस a है ना, इसीलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 6। तो जब अपन x अपॉन 6 लिखेंगे a की जगह पर तो b अपॉन y अपॉन 3, और जब हम x के नीचे 3 लिखेंगे तो y के नीचे हमें 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि a और b की वैल्यू इंटरचेंज हो रही है। जब a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू क्या है 3 है, तो इक्वेशन क्या है हमारी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो दो इक्वेशन होंगी, ऐसी दो लाइंस हो सकती हैं जिनका स्लोप, जिनका इंटरसेप्ट का सम 9 हो और 2,2 से गुजरे, ऐसी हमारी दो लाइंस हो सकती हैं, उनकी इक्वेशंस आपके सामने हमने लिख दी हैं। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2, equation of a line through the point 0,2 and making an angle of 2 pi by 3 with the positive direction of x axis। positive direction of x axis का मतलब होता है कि सही जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको आप कहते हो, वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है 2 pi by 3। line is passing through, equation of a line which is passing through 0,2 and making an angle of 2 pi by 3 with the positive x axis। now with this we can have the value of slope जो कि tan थीटा होता है, मतलब tan 2 pi by 3। आप जानते हैं 2 pi by 3 के लिए हमें इसको pi minus pi by 3 लिखना पड़ेगा, और जब हम इसको tan pi minus pi by 3 लिखते हैं तो minus tan pi by 3 होता है, और ये minus root 3 इसकी वैल्यू आती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है pi minus pi by 3। pi minus pi by 3 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसीलिए tan थीटा वहां नेगेटिव होता है, तो minus tan pi by 3 होगा, और आपका स्लोप जो है, जो m है, वो minus root 3 होगा, और आपका x1 y1 क्या है 0,2 है। तो इस प्रकार से आपको y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, तो ये हो जाएगा √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपकी रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन उसने फिर हमसे ये कहा है कि अगर आपकी लाइन in the equation of find the equation of a line parallel to it and crossing the y axis a distance of 2 units below origin। अब इसी लाइन के, ये जो लाइन हमें बता रहा है वो इसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन जा रही है। अगर पैरेलल जा रही है तो स्लोप बराबर होगा, जो स्लोप इसका था वही स्लोप उसका भी होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कहां से जा रही है, जैसे ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ये एंगल है आपका 2 पाई बाय 3 है ना, 120 डिग्री होता है 2 पाई बाय 3, तो ये एंगल है आपका 2 पाई बाय 3। ये लाइन आपकी जो है वो कहां से गुजर रही है, 0,2 से काट के जा रही है ना। अब लेकिन वो जिस लाइन की बात कर रहा है वो लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल आ रही है, पैरेलल, समझ रहे हो आप, और 2 यूनिट ओरिजिन से नीचे काट रही है, ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट काट के जा रही है, वो पैरेलल जा रही है और ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग y एक्सिस द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे काट रही है। तो जो एंगल है हमारा, वो एंगल में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं। नाउ स्लोप will be again minus √3, but x1 y1 now it will be 0 and -2। क्योंकि स्लोप क्यों सेम है, क्योंकि इसी लाइन के पैरेलल लाइन का हमें इक्वेशन बताना है, तो जो हमारी उस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप होगा। लेकिन परिवर्तन कहां आ जाएगा, जहां से ये गुजर रही है। अब ये बिलो द ओरिजिन गुजर रही है तो यहां y1 की वैल्यू -2 हो जाएगी, और y माइनस y1 is equals to m into x minus x1। तो y plus 2 is equals to minus √3x, √3x plus y plus 2 is equals to 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इस तरह से इस सवाल को हम खत्म करेंगे। सरल सवाल था, सीधे सीधे हमारे पास में जो फॉर्म हमारे पास में है स्लोप पॉइंट फॉर्म, सीधे सीधे उसी पर बेस क्वेश्चन था। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस,
एक्सरसाइज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताए जा रहे हैं, बहुत सवाल इसमें से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जरूर क्या कहते हैं, आप लोग भी इनकी प्रैक्टिस करें, इन्हें कर करके देखें बार बार। जब आप इसे बार बार करेंगे तभी, और डायग्राम जरूर बनाएं। जब आप डायग्राम बनाते हैं तब आधा सवाल तो आपका वैसे ही सॉल्व हो जाता है। जैसे ज्योमेट्री में हम करते थे, बगैर डायग्राम के सवाल नहीं हो सकता हमारा, तो ज्योमेट्री में जिस प्रकार से करते थे उसी प्रकार से हम यहां भी करेंगे, बगैर उसके नहीं हो पाएगा। आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो सवाल में डायग्राम बन सकता है वहां डायग्राम जरूर बनाइए। आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मीट इट एट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मीट इट एट -2,9, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, वो लाइन को कहां मिल रहा है, -2,9 पर मिल रहा है। ठीक है, -2,9 इस तरफ होता है, कोई बात नहीं, हमें समझ में आना चाहिए, बस सिर्फ सवाल हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे होगा। तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो क्या आप स्लोप ऑफ OA निकाल सकते हैं? फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लगा करके 9 - 0 अपॉन -2 - 0। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, क्योंकि BC जो है, BC परपेंडिकुलर है OA के, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल लिख दो सीधे सीधे BC के स्लोप को क्या लिख दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल। 9/2 का रेसिप्रोकल 2/9, उसका नेगेटिव कर देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो BC का स्लोप आ गया, और BC कहां से गुजर रही है, तो BC का स्लोप आ गया और BC गुजर रही है -2,9 से गुजर रही है। तो y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब मैं कब तक ऐसे लिखूं, ये समझ में आना चाहिए आपके कि सीधे सीधे प्लस लिखना पड़ेगा वहां पर। मुझे मेरे स्टेप्स जो हैं वो ऐसे करने से इंक्रीज हो जाते हैं। तो 2x - 9y + 85 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से इस सवाल को अंजाम देंगे हम। हमारे पास में स्लोप है, हमारे पास में पॉइंट है, कहां से लाइन गुजर रही है। स्लोप कैसे निकाला, ये जो परपेंडिकुलर डाला था हमने ओरिजिन से, इसके परपेंडिकुलर हमारी लाइन है, इसीलिए जो इस परपेंडिकुलर का स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हमारी लाइन का स्लोप हो जाएगा। हमारी लाइन मतलब BC की बात कर रहा हूं मैं, और BC कहां से गुजर रही है, BC -2,9 से गुजर रही है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट भी मालूम है, स्लोप भी मालूम है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा करके हम आंसर निकाल सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, the length L in centimeter of a copper rod of linear function on LHS temperature C L. So L is given, I will call it L1 124.942. L1 C1 is also given 20. L2 is given 125.134. and C2 is also given 110. So express L in terms of C. We have to express L in terms of C. So L in terms of C represent करना है अगर हमको, तो हम क्या करेंगे कि L को अपन वो मान लेंगे। L in terms of C अगर रिप्रेजेंट करना है तो L is equals to होना चाहिए, और C का टर्म्स कहां होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में L होना चाहिए, राइट हैंड साइड में C होना चाहिए। तो अगर हम फॉर्म को देखें, y - y1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y - y1, तो L1 को हम क्या मान लें, y1, तो ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y2, और ये क्या हो जाएगा x2। तो इसको, इन वैल्यूज को यहां डाल दीजिए। जब आप इन वैल्यूज को यहां डाल देंगे, y - y1 इज इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि लीनियर फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो लीनियर फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में भी इसी प्रकार से कहा गया है कि ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही सेल्स 980 लीटर्स ऑफ मिल्क
अगर हम x1 को 980 ले लें, x1 को 980 ले लें और y1 को ₹14 पर लीटर ले लें और x2 को 1220 लीटर्स ले लें और y2 को ₹16 पर लीटर ले लें, तो क्या हम y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 करके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी तो उस इक्वेशन में आप जो इक्वेशन आएगी आपकी, उसमें y की जगह पर 17 रख करके और x निकाल लेना। y की जगह पर क्या रखना है आपको? 17 रखना है, क्योंकि उसने कहा है कि अगर रेट 17 रुपीज पर लीटर होगा तो कितना लीटर उसको बेचना पड़ेगा, तो x की वैल्यू मिलेगी। पहले इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन जब निकल जाएगी तो उसमें y की जगह पर 17 रख दीजिएगा। y की जगह पर जब आप 17 रख देंगे तो एक x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को ही आप आंसर मानेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो this was question number 17. Now let's move on to question number 18. When we move on to question number 18. In question number 18, it is given that there is a line which is drawn between the axis and the intercept has midpoint a comma b. Intercept मतलब समझते हो आप? AB, जो AB है ना उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट, जो AB लेंथ है उसे बोलेंगे इंटरसेप्ट, क्योंकि ये जो लाइन है ना इसकी कोई लेंथ थोड़ी होती है, लाइन की कोई लेंथ नहीं है, लेकिन AB जो यहाँ पर है जो एक्सिस के बिटवीन में है, बिटवीन द एक्सिस उसने वर्ड का इस्तेमाल किया है वहां पर, बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस वो AB है, उसे AB बोलेंगे। तो उसका मिड पॉइंट क्या दिया है अपन को? C दिया हुआ। ठीक, अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस को काट रही है इस पॉइंट पर, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है? अल्फा कॉमा 0 या a कॉमा 0 या x कॉमा 0 ऐसी होता है। तो अपन a तो ले नहीं सकते, a ऑलरेडी यहां ले चुका है वो, इसीलिए मैंने अल्फा कॉमा 0 लिया है। ये y एक्सिस का पॉइंट है, इसीलिए ये 0 कॉमा बीटा लिया हुआ है, दैट पॉइंट इज 0 कॉमा बीटा, 0 कॉमा बीटा ऐसे। अब AB का अगर ये मिड पॉइंट है, if C is the midpoint of AB, then using the midpoint form A is equals to 0 plus alpha upon 2 and B is equals to beta plus 0 upon 2. X is equals to x1 plus x2 upon 2, y is equals to y1 plus y2 upon 2. So from here you will get the value of alpha is equals to 2a and beta is equals to 2b. Now the lines are making intercept of alpha and beta on x axis and y axis respectively. जो लाइन है हमारी वो x एक्सिस पे अल्फा का इंटरसेप्ट बना रही है, 0 से लेके या ओरिजिन से लेकर के a तक की दूरी अल्फा है और ओरिजिन से b तक की दूरी कितनी है? बीटा है, इसीलिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहेगा? x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। लेकिन वहां पर a और b क्या होते हैं? x और y इंटरसेप्ट होते हैं, लेकिन यहां पर इंटरसेप्ट क्या है? अल्फा और बीटा, इसीलिए इक्वेशन क्या बनेगी? x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 1। अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू डाल दी तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, द नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर हमसे कहा गया है कि एक लाइन है हमारे पास में, एक लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, अगेन अ लाइन बिटवीन द एक्सिस, जो इंटरसेप्ट है उसका AB, उसको इस C पॉइंट ने 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया है। C पॉइंट ने 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको यहां पर। C पॉइंट ने 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया है। 1:2 हमेशा x to y लेना, y to x मत ले लेना, x to y यहां से यहां लेना है, 1:2 यहां से यहां मत लेना, रॉन्ग हो जाएगा। ये रूल है, जब भी रेशियो बताया जाता है तो x to y लिया जाता है, तो इसीलिए इस तरफ 1 होगा, उधर 2 होगा। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और h इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0। क्या है? ये लाइन है हमारी, ये लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, b और ये है a, 0 है ना। यहां पर a लिखा हुआ है, यहां पर b लिखा हुआ है, ये c है, पॉइंट है h, k, रेशियो है 1:2। तो इंटू कैसे होगा? ऐसे क्रॉस में इंटू होगा। h इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 1, k इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0
इंटू 1 इंटू बी अपॉन 2 प्लस 1। तो इस तरह से ये हमें a और b की वैल्यू आ गई। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां तो x इंटरसेप्ट a ही है और यहां पर y इंटरसेप्ट b है। यहां पर तो a और b ही माना है अपन ने, इसीलिए a की जगह पर 3h अपॉन 2 और b की जगह पर 3k डालेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी हमारी। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या बता रहा है हमको, वो बता रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करके शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो पहले हमने इन दोनों पॉइंट्स को x1 y1 और x2 y2 लेकर के और 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके एक इक्वेशन बना ली। अब अगर ये वाला पॉइंट भी इक्वेशन पर लाई करता है, इस लाइन पर लाई करता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो हमने देखा कि 8,2 जो था वो भी x और y की जगह पर रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब कि 8,2 भी इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मतलब कि यह इक्वेशन जो है वो उस लाइन की है जो लाइन इन तीनों पॉइंट से गुजर रही है। अगर लाइन तीनों पॉइंट से गुजर रही है मतलब वो पॉइंट्स कैसे हैं, दे आर कोलिनियर। So students, this is all about your exercise number 2. Go through it thoroughly, solve all the questions and solve the examples given before this exercise. They are very, very important. The whole exercise is important. So, and complete the assignment and send it to me on the required date. Thank you, students.